My dear students, today we start the next topic, transformation of equation, first lecture. First point is that we discuss one by one with some everything with example. We have given an equation this of degree 5. Its roots are alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 and alpha 5. What is our aim? Our aim is to find a new equation whose roots are same in magnitude but opposite in sign. यानी कि हम ऐसी इक्वेशन चाहते हैं जिसके रूट ये हो. तो व्हाट वी हैव टू डू, इसके लिए हमें क्या करना है? पुट y इज इक्वल टू -x और x इज इक्वल टू -y. दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन. तो यदि हम ये रख देते हैं तो क्या मिलेगा हमें? -y5 plus 11y minus 4, 7y minus cube, 16 minus y square, minus 12 minus y plus 15 is equal to 0. माइनस से डिवाइड कर देंगे तो y5 minus 11y4, 7y cube, 16y square, minus 12y minus 15 is equal to 0. This equation has root minus alpha 1, minus alpha 2, minus alpha 3 and like minus alpha 4, minus alpha 5. Now again question. Equation यही है, एम बदल गया. Its roots are alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 and alpha 5. Now our aim is to find an equation whose roots are 4 alpha 1, 4 alpha 2, 4 alpha 3, 4 alpha 4 and 4 alpha 5. What we have to do? Multiply 4 raised to the power 0 with x raised to the power 5, 4 raised to the power 1 with 11x raised to the power 4, 4 raised to the power 2 with 7x cube, 4 raised to the power 3 with minus 16x square, 4 raised to the power 4 with minus 12x, 4 raised to the power 5 with 50 equal to 0. We get the equation. Any doubt? Maybe no doubt. Now, it is not necessary that we will multiply this with 4. It is also possible that if you want root minus 4 alpha 1, minus 4 alpha 2, minus 4 alpha 3, minus 4 alpha 4, minus 4 alpha 5. तो हम इस पहली इक्वेशन को इसकी बजाय गुणा करते -4 raised to power 0 से, वैल्यू करते -4 raised to power 1 से, -4 raised to power 2 से, -4 raised to power 3 से, -4 raised to power 4 से और -4 raised to power 5 से. And we get the appropriate solution. Okay. So this is the one thing. So many things we have to do next. One might our question is that this is a equation
of degree 4. Here, all coefficients are not integer. Some are fractional part. Its roots are alpha, beta, gamma, and delta. We want to root of new equation as m alpha, m beta, m gamma, and m delta, such that fractional coefficient should be removed. So what is the minimum value of this n? Again, alpha, beta, gamma, delta root of this equation. We want to find the minimum value, minimum positive integer m, such that रूट्स क्या बन जाए एम अल्फा एम बीटा एम गामा एम डेल्टा एंड द फ्रैक्शनल पार्ट शुड बी रिमूव. तो कैसे करेंगे? सिंपल एक तरीका है. देखो, ये 4 पावर के लिए, ये 3 पावर के लिए, ये 2 पावर के लिए, 1 पावर के लिए, 0 पावर कॉन्स्टेंट. तो यहां से शुरू करेंगे. ये 2 है, पावर ऑफ 2. इसमें पावर ऑफ 2 1 है, इसमें पावर ऑफ 2 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0. नाउ पावर ऑफ 3, यहां पर पावर ऑफ 3 इसकी 0 है, यहाँ 1 है, 1 है और 0. इसको 1 से डिवाइड, इसको 2 से, इसको 3 से और इसको 4 से. दिस इज इक्वल टू 1. ओके, 2 से, सॉरी, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से और इसको 5 से. दिस इज लेस देन 1. इसको 1 से, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 2 3 4 5. दिस इज लेस देन 1. ये कैलकुलेशन कैसे आई, मैं एक और एग्जांपल बताता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए. फिर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर पूरी हम ग्रिपिंग देंगे इस क्वेश्चन की. इसके अंदर 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, इसमें 5 की पावर 2, इसमें 2 की पावर 3 एंड 5 रेज़ टू पावर 2. तो पावर ऑफ 4, 3, 2, 1 एंड कांस्टेंट. पावर ऑफ 4 0, 3 में 0, 1, 2 पावर ऑफ 2 है. दिस इज पावर ऑफ 2. डिग्री 4, 3, 2, 1, 0. यहाँ पर पावर ऑफ 2 0, यहाँ पावर ऑफ 2 3. तो 1 से डिवाइड, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से. All this are less than by in positive integer 1. क्लियर करो. 5 की पावर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 1, 2 एंड 3. 1, 2, 3, 4, 5. All are less than 1. This is power of 5. One thing is very important here. If here we get 4 by 4, तो सारे 1 से छोटे नहीं होते, तब हम यहाँ 2 लेते. करेक्ट. तो हमें ऐसे देखना है. इस क्वेश्चन में हमने डिवाइड कैसे करना है? हाईएस्ट पावर के डिवाइड 1, उससे आगे 2, 3, 4, 5 लाइक. यहां पर क्या आया? वो m 2 की पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर, यानी कि कितना आएगा? 6. और यहाँ कितना आएगा? 2 की पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1 कितना आएगा? 10. यानी इसके रूट को 6 से मल्टीप्लाई कर दो. तो 6 की पावर 0 से, 6 की पावर 1 से, 6 की पावर 2 से, 6 की पावर 3 से, 6 की पावर 4 से. तो एक ऐसी इक्वेशन आएगी जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट रिमूव होएगा और इससे छोटी नहीं आ सकता. इसमें इसको 10 की पावर 0 से, एक टर्म नहीं है, उसको 10 की पावर 1 से, इसको 10 की पावर 2 से, 10 की पावर 3 से, 10 की पावर 4 से. इसमें भी फ्रैक्शनल पार्ट्स क्या हो जाएंगे? रिमूव. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. सी वन मोर क्वेश्चन. If we have a equation like that,
and remove the fraction part. 4 power 3 2 1 constant. इधर a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 4, a की पावर 3 पावर ऑफ a. b की पावर 0 1 1 2 3 divide by 1 divide by 2 divide by 3 divide by 4 divide by 5. They are not all less than 1, they are less than 2. 1 2 3 4 5, they are less than 1. This is power of b. m comes to be a square b. तो इसको किससे प्राप्त करना, इसकी 0 पावर से, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको इससे डायरेक्ट गुणा करेंगे तो बचेगा ए एक्स क्यूब। इसके स्क्वायर से इसको गुणा करेंगे तो आएगा a की 4 b स्क्वायर, कट के बाद जाएगा a स्क्वायर b। यहां जब गुणा होगा तो a की 6 b क्यूब गुणा होगा तो बच जाएगा ऊपर a स्क्वायर b। यहां गुणा होगा a की 8, बचेगा a की 5 और b की 4 आएगा, बचेगा b इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। तो दीज आर द सम फंडामेंटल थिंग्स वी हैव टू स्टडी। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द वन वर्ड reciprocal roots. Equation of these roots are alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, alpha 5. We want to form a new equation whose roots are reciprocal. That means 1 by alpha 1, 1 by alpha 2, 1 by alpha 3, 1 by alpha 4 and 1 by alpha 5. How we can find? Only one change. Change x is equal to 1 by y. We get this. Take LCM. We get 2y5, 3y4, 6y cube, 4y square plus 1 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के रूट पहली वाली इक्वेशन से रेसिप्रोकल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ डिग्री 3 प्लस HP, यानी कि इफ रूट्स आर गिवन इन HP, I take one example, this equation. Question is that its roots are in GP. Sorry, roots are in HP. How you can solve? HP means first root is A, B and C. If A, B, C are in HP, then 1 by A, 1 by B, 1 by C are in AP. तो कोई भी क्वेश्चन यदि आपने HP में सोल्व करना है, उसको सोल्व करने के लिए पहले उसको AP में बदलना है। तो इसके रूट A, B, C हैं, ऐसे बदलना है तो मैंने बताया था x को आप 1 by y रखो। तो ये इक्वेशन आ गई। तो 2y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर 11y प्लस 6 इक्वल टू 0। जो इसके रूट होंगे वो AP में होंगे और इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, जो इसके रूट आएंगे उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो HP में हो जाएंगे। तो हमें इसके रूट फाइंड करने। फर्स्ट रूट मैंने मान लिया इसका a माइनस डी, सेकेंड इज a, थर्ड इज a प्लस डी। तो सम कितना होगा जी, 3a, दैट इज माइनस 3 by 2। वी गेट a इज इक्वल टू हाफ। हाफ से सिंथेटिक डिवीजन लगा दीजिए, 2 माइनस 3 माइनस 11 6, 2 1 माइनस 2 माइनस 1, वी गेट माइनस 12 माइनस 6 0। तो क्या बच गया, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये इक्वेशन आ गई। सॉल्व करो, फैक्टर बनाओ, 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। व्हाट वी गेट,
we get x minus 3 to, yes, we get these two factors. We get x is equal to minus 2 and 3, and one value we get already of x. तो ये तो किसके अंदर रूट बने थे, एपी में. किस में, ये किस इक्वेशन के, जो इक्वेशन आपको 2 डिग्री में, सॉरी, जो आपके किस अंदर दे रखी है, वाई में दे रखी है. परंतु जो एग्जैक्ट इक्वेशन थी जिसके रूट आपने किस में निकालने थे, एचपी में निकालने थे, तो एचपी वाले रूट आएंगे -1/2, 1/3 एंड 2. हमने इसका क्या कर दिया, रेसिप्रोकल. तो बच्चों, चाहे आपने 3 डिग्री की इक्वेशन को एचपी में निकालना है या 4 को निकालना है कि सोल्व करने है, तो आपको क्या करना है, सीधा सा तरीका है कि आपको पहले रूट रेसिप्रोकल करने हैं और फिर आपने सोल्व करना है. ठीक है. वन क्वेश्चन नाउ, फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स आर इन एचपी. मैंने पहले बताया आप x को 1/y पुट करिए, तो इक्वेशन बनेगी 1/y³ py² qy प्लस r इक्वल टू 0. तो ry³ qy² py प्लस 1 इक्वल टू 0. इसके रूट एपी में हो जाएंगे. एपी में होने के लिए a माइनस डी, a एंड a प्लस b, इन तीनों का सम -q/r होना चाहिए. तो a इज इक्वल टू कितना आएगा, -q/3r. ये वैल्यू रूट है इस इक्वेशन का, तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड. तो ये कंडीशन आ जाएगी. यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो रूट्स आर इन एचपी, अदरवाइज इन नॉट इन एचपी. ओके my dear students, last question of today, 40x4 22x cube 21x square 22x plus 1 इक्वल टू 0. इसके रूट एचपी में है. तो मैंने बताया था x को 1/y पुट करो, क्या आ जाएगा, y4 2y 21y square 22y plus 40. इसके 4 रूट निकाल लो जो एपी में होंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड फर्स्ट एक्सरसाइज of transformation of equation. You have any problem, you can discuss in the online class tomorrow. Okay, and thank you very much.